स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैसिफिक केमिस्ट्री क्लासेस बाय महिमा लहरिया। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे इन द डिटेल्स ऑफ एलिस कपलिंग। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज आवर फॉर्मूला वंस अगेन। इट इज द टर्म टू डिटरमाइन द टर्म symbol. The formula is L2s plus 1 and this is the J. So this is the multiplicity. This will give you the total orbital angular momentum quantum number, and this is the J, that is the sum of L plus S to L minus S. Now let us see one question, that is determine the term symbol for L is equals to 2 and S is equals to 1 by 2. So we know that when L is equals to 2, it means that we are talking about what term you will get. This will be the D. So you will get the term symbol capital D. Then what we have to find, then next is our multiplicity. Next आपको क्या निकालना पड़ेगा? Multiplicity. So what is the multiplicity formula? It is 2s plus 1. तो 2 into s is half. तो कितना हो जाएगा आपका 1 by 2. So you will get the multiplicity as a 2, right? So you have the two things now. Multiplicity is our 2 and we have the L is equals to D. Now we have to find the value of J. J क्या होता है? Mod of L plus S to L minus S. So we will just solve it. 2L we will put our 2 because it is given here ना, L is equals to 2 in the question. So 2 रखेंगे आप इसको. S is our 1 by 2. Just you will solve this. Take the LCM and solve. So you will get 5 by 2. Here you will get our 3 by 2. So just 3 by 2. So there will be, when you are getting the two values for the J, और 5 by 2 और 3 by 2 के बीच में कुछ भी नहीं है, तो आपको mod of L plus S से L minus S तक जाना है. So we have only two values for J, that is 5 by 2 and 3 by 2. So what are the two terms? The two terms will be our 2D 5 by 2 and 2D 3 by 2. Okay, so this is the one question. So just now let us see the second question of this type, same type. When L is equals to 1 and S is equals to 3 by 2. तो स्पिन वैल्यू कभी कभी आपको इस इंटीग्रल फॉर्म में भी रहेगा. सो जस्ट L is equals to 1 है तो हमारा टर्म कौन सा आ जाएगा? P आ जाएगा. ओके, देन द फॉर्मूला वी नो 2s plus 1 LJ. So now what is the multiplicity here? S का value दिया 3 by 2. So when you will solve this, so what you will get? 4. तो multiplicity यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा, right? So when the multiplicity will be the 4 and what will be the J values? So J values find out करने के लिए हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है? L plus mod of L plus S to L minus S. तो जब आप 1 L का वैल्यू कितना रखेंगे? 1 plus 3 by 2 सॉल्व करेंगे, so you will get our 5 by 2 and 1 minus 3 by 2 सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा minus 1 by 2. So it is mod, तो हमारा सारा पॉजिटिव वैल्यूज ही बाहर आता है. So we will have in between this value and this value there is 3 by 2. So हमारे पास 3 values हैं J की, 5 by 2 and 3 by 2 and 1 by 2. So what will be the possible terms? तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? पहले लिखेंगे हम P. We can write there are 3 values of J, तो हम 3 बार लिख लेंगे 5 by 2 and multiplicity is 4. So like this you will get the 3 term. So first will be 4P 5 by 2, 4P 3 by 2, 4P 1 by 2. So these are the 3 possible your term symbols when L is equals to 1 and your S is equals to 3 by 2. Now next we will solve, determine the symbols for the ground state and first excited state of helium. So यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है ground state and the first excited state of helium. So we know that atomic number of helium is 2. तो आप just let us see what are, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट. तो आपको पहले ये थोड़ा सा देख लेना चाहिए. अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो नॉर्मल हमारे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज. एक्साइटेड स्टेट में भी 2 कंडीशन जनरेट होती हैं. एक होता है हमारा व्हेन अवर बोथ द स्पिन्स आर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये क्लॉकवाइज और ये वाला कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दे आर एंटी पैरेलल. ओके, और सेकंड कंडीशन होती है हमारी बोथ द स्पिन्स आर पैरेलल. तो जब ऐसी कंडीशन होगी, ऐसी सिचुएशन होती है, तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे एस का फाइंड आउट करेंगे ना, तो ये प्लस हाफ और ये माइनस हाफ, तो यहाँ पे एस बराबर 0 आएगा. तो जब एस बराबर 0 है तो मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करेंगे तो 2s plus 1 में 1 आएगा. जब हमारी एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट होगी व्हेन बोथ द स्पिन्स आर पैरेलल, तो यहाँ पे प्लस हाफ विल गिव यू द मल्टीप्लिसिटी 1. सॉरी, इनका टोटल 1 आएगा. S इज इक्वल्स टू 1 तो मल्टीप्लिसिटी 2s plus 1 इज इक्वल्स टू 3. तो ट्रिपलेट मल्टीप्लिसिटी. सो इनका ध्यान रख के हमको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो जस्ट वी विल सी
जब हमने फर्स्ट क्या दिया है आपको, हीलियम है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हमने, बोथ आर सिटिंग इन द 1s, तो 1 है और s है, तो s कंडीशन में l की वैल्यू कितनी होती है हमारी, जब हम लिखते हैं 0 1 2 3, तो s p d f, तो आपको s दिया है, इट मीन्स दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l इज 0। ओके, जब l आपका 0 है, हमारा टर्म कौन सा हो जाएगा, व्हेन आपका 0 के लिए टर्म हमारा s ही होता है ना, तो हमारे पास इसका टर्म हो जाएगा कैपिटल S, व्हेन मीन्स दिस विल बी अवर S हेयर। ओके, नाउ मल्टीप्लिसिटी हमारी कितनी हो जाएगी इस कंडीशन में, ये प्लस हाफ हो गया, ये माइनस हाफ हो गया, तो जब प्लस हाफ माइनस हाफ तो यू विल गेट 0, तो मल्टीप्लिसिटी हमारी यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगी। ओके, मतलब जब आप 0 पुट करोगे तो हमको क्या मिलेगा, S का वैल्यू 0 है, तो मल्टीप्लिसिटी हमारा सॉल्व करेंगे 2s+1 में, तो कितना मिल जाएगा, सिंगलेट। ओके, दिस इज सिंगलेट स्टेट, तो हमारे पास जो टर्म सिंबल बनेगा यहाँ पे, टर्म सिंबल कैसा बन जाएगा, जब आपका L भी 0 है और S भी 0 है, तो हम J कैसे फाइंड आउट करेंगे, J की वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ L प्लस S टू मॉड ऑफ L माइनस S, तो आपका दोनों ही टर्म 0 है, तो फाइनली यू विल गेट 0 ओनली, तो टर्म सिंबल इन द ग्राउंड स्टेट फॉर द हीलियम विल बी योर, व्हाट विल द टर्म सिंबल, 1s 0, तो आपका s क्या हो गया, ये तो मेन टर्म हो गया, 0 क्या हो गया, j हो गया, 1 क्या है उसकी मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि यहाँ पे वो सिंगलेट कंडीशन में है। ओके, नाउ लेट अस सी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे उसकी, तो आपने एक में तो देखा है, जब सिंगलेट रहेगा तो हमारी स्पिन्स कैसी रहेंगी, एंटी पैरेलल रहेंगी। जब पैरेलल में बात करेंगे हम, तब हमारे पास में क्या पोजीशन हो जाएगी, S का जो वैल्यू रहेगा, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, तो प्लस हाफ और प्लस हाफ क्या मिल जाएगा आपको, 1। ओके, तो जब हम 1 को मल्टीप्लिसिटी के फॉर्मूले में रखेंगे तो 2s+1, सो मल्टीप्लिसिटी विल बी 3 here. Okay, now but the J values are same because it is our again the 1s orbital ही है ना, so what when it is our 1s orbital, s orbital है, so we know that 0 द टर्म सिंबल इज एस ओनली, तो आपका जो टर्म सिंबल है वो तो हमारा मेन टर्म एस ही रहेगा, बट नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर अवर जे। सो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ जे, टेक द मॉड ऑफ एल प्लस, so when we will solve it, L plus S, so we will put L plus S 0, L is 0 and S is 1, so we will get 1 here, and L minus S, that is 0 minus 1 also will be minus 1, so it is a mod, so we will get your 1 here, so the value of J was only our 1. So how we will write the term symbol, so we will write the term symbol multiplicity 3 हमारी, और हमारा जो टर्म है वो हमारा क्या है, L का वैल्यू 0 ही है यहाँ पे, तो S है, और आपका जो J का वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 1 है, इसलिए जब J का वैल्यू 1 आया है तो हमारा टर्म सिंबल क्या हो जाएगा, 3s1. Now let's see the next one. So just the term symbol for our L is equals to 2 and S is equals to 1, तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, तो ये तो आपको क्लियर है, टर्म पूछ रहा है, टर्म सिंबल, तो यहाँ पर उसने L बराबर 2 दिया है, तो जब हम देखेंगे L बराबर 2 के लिए क्या होता है, तो D टर्म होता है, 0 1 2 SPD, तो ये तो टर्म तो हमारा D है, लेकिन हमको कंफर्म करना है, D 2 जगह में ऑप्शन में, तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका S इज इक्वल्स टू 1 है, तो आपकी मल्टीप्लिसिटी एक बार क्या हो जाएगी, जब हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लिसिटी विल बी अवर 2s+1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, तो जब हम इसका J वैल्यू निकालेंगे तो J विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ L प्लस एस टू L माइनस एस, तो हमने L कितना रखा है, L बराबर 2 + 1 तो 3, और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो 1, तो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी 3 है, मतलब ये आप पूरा सॉल्व कर रहे हैं। सो वी विल राइट 3 टर्म सिंबल्स फॉर द कंडीशन L इज इक्वल्स टू 2, S इज इक्वल्स टू 1, तो 3 टर्म्स कौन से मिल जाएंगे, 3 टर्म सिंबल्स 3D3, 3D2 एंड 3D1, मतलब आपके पास जब J का मान 3 मिल रहे हैं, 3 2 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपको 1, तो बीच में हमारा केवल 2 आ रहा था, इसलिए हमने J के 3 वैल्यूज मिलते, 3 and 2 and 1. सो द फॉलोइंग, सो द करेक्ट ऑप्शन above will be our C1 because there is not the multiplicity even, but यहाँ पे 5D है, तो 5D तो हमारा रॉन्ग ही होगा, 3F हो नहीं सकता, 1S हो नहीं सकता। सो इस टाइप में थोड़ा सा सोच के करना है, अगर दोनों जगह आपका D टर्म दिया है तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, C. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, आपको जो भी टॉपिक्स पे अगर नोट्स चाहिए है या कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डू जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।